वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धैश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमः। नीताय पदकमला कोटिचन्द्र सुशीतला नीताय पदकमला कोटिचन्द्र सुशीतला ये छायाय जगत जुरा हेनो नीताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় शेषा मंद नहीं जार वृथा जन्म गेल तार সেই পশু বড় দুরাচার সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যাকুলে কি করিবে তার বিদ্যাকুলে কি করিবে তার অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া असत्येर सत्य करी मानी असत्येर सत्य करी मानी नितायर करुणा वे ब्रज राधा कृष्ण पावे नितायर करुणा वे ब्रज राधा कृष्ण पावे धर नितायर चरण दुखानी धर नितायर चरण दुखानी नितायर चरण सत्य तारो सेवक नित्य नितायर चरण सत्य तारो सेवक नित्य निताय पद सदा कर आस निताय पद सदा कर आस नरोत्तम वर दुखी निताय मरे कर सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताय मरे कर सुखी राखो रांगा चरणेर पास राखो रांगा चरणेर पास दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি
গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণেন মারিল কারে দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণেন মারিল কারে হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ডালি ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ডালি কাঙ্গালে পাইয়া খাইল নাচিয়া কাঙ্গালে পাইয়া খাইল নাচিয়া বাজাইয়া করতালি বাজাইয়া করতালি এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া হাসিয়া কান্দিয়া প্রেমে গড়া গরি পুলকে ব্যাপিল হাসিয়া কান্দিয়া প্রেমে গড়া গরি পুলকে ব্যাপিল চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি তবে বাঁচিল এ রঙ্গ তবে বাঁচিল এ রঙ্গ এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া ডাকিয়া হাকিয়া খোল করো তালে গাইয়া দাইয়া ফিরে ডাকিয়া হাকিয়া খোল করো তালে গাইয়া দাইয়া ফিরে দেখিয়া সমান তরস পাইয়া দেখিয়া সমান তরস পাইয়া কপট হানিল দ্বারে কপট হানিল দ্বারে গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাহিয়া
গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে মন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল ফুটিল মঙ্গল সোর এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল ফুটিল মঙ্গল সোর কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর রতি না জন্মিল মোর এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া মাধব বহু তুমি নতি করিত মাধব বহু তুমি নতি করিত দেই তুলসী তিলা দেহ সমর্পিলো দেই তুলসী তিলা দেহ সমর্পিলো দয়া জানি নাচর বিময় দয়া জানি নাচর বিময় মাধব বহু তুমি নতি করিত গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি जब तू करबी विचार जब तू करबी विचार तू जगन्नाथ जगते कहासी तू जगन्नाथ जगते कहासी जग बाहिर नहीं मुई छार जग बाहिर नहीं मुई छार माधव बहु তুমি নতি করিত মাধব বহু তুমি নতি করিত দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু দয়া জানি নাচর বিময় মাধব বহু তুমি নতি করিত কিয়ে মানুষ পশু পাখি জনমি কিয়ে মানুষ পশু পাখি জনমি অথবা কীট পতঙ্গে অথবা কীট পতঙ্গে করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ করম বিপাকে
गाता गति पुनः पुनः मति रहूं तुआ पर संगे मति रहूं तुआ पर संगे माधव बहु तमी नति करित माधव बहु तमी नति करित भनये विद्यापति अतिशय कातर भनये विद्यापति अतिशय कातर तरैते इह भव सिंधु तरैते इह भव सिंधु तुआ पद पल्लव करियावलंबन तुआ पद पल्लव करियावलंबन तिल एक देह दिन बंधु तिल एक देह दिन बंधु स्वपद पल्लव करियावलंबन तिल एक देह दिन बंधु माधव तमी नति करितो माधव बहु तमी नति करितो दे तुलसी तिल देह समर्पिलु दे तुलसी तिल देह समर्पिलु दया जानी नाचर विमय दया जानी नाचर विमय माधव बहु तमी नति करितो जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय जामुन तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा जीवाना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय जामुन तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री निताई गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय हरिदास प्रभु की जय, दंडवत जय प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी के पद की जय जय। प्रभु की जय। हरे कृष्ण। আমি বন্ধ করি। हाँ प्रभु ठीक है। बलि गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनोति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुरे पादं भूजयते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावो मे स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् ब्रजेश्वरी कोरगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नवीननिरदश्यामनिलिन्दिवरलोचनं यशदानन्दनं नौमि कृष्णगोपालस्वरूपम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगत में हंताय वज्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहो गोगन स्तरियत पानीय जब सकंदर कंदमूलई गोवर्धन जयति शैलकुलाधिराज य गोपिका वृदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग गीतार्चित सप्ताहमश्य कर पद्मतले वापसी सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्कजे भिङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्दिं शिरसा नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्य बिंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का स्वाष्टांग और दंडवत करें। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा ये दंडवत। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में आज हम लोग चतुर्थ अध्याय जो है इस कथा श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए भोले बाबा देवी पार्वती को खूब करके समझाए। समझाने के बाद भी पार्वती देवी नहीं मान रही। भोले बाबा ने ईश्वर के ऊपर उन्होंने छोड़ दी। जो भवितव्यम है वो तो हो ही जाएगा। संसार में उन प्रारब्धों को कोई रोक नहीं पाए। हमारे भाग में जो होना है, हमें जो मिलना है, वो कैसा भी है वो हमें मिल ही जाएगा, सुख या दुख। ये दैवों की इच्छा है, अपने प्रारब्ध का ही है। इसलिए इन कर्मों को देखकर, इन प्रारब्धों को प्राप्त करके जो महात्मा लोग जो है, विशेष करके भगवत जो भक्तों जो है, इन प्रारब्धों को प्राप्त करके ना तो सुख ना तो दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये सुख और दुख ये हमारे प्रारब्ध है। जिस प्रकार दुख हम नहीं चाहते हैं, संसार में कोई भी प्राणी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता है। सभी लोग सुख ही चाहता है, भोग ही चाहता है, पर दैवत क्रम से, घटना क्रम से, प्रारब्ध के अनुसार दुख आ ही जाता है, न चाहने पर भी। इसी प्रकार अगर हमारे भाग में अगर सुख है, जो हमारे प्रारब्ध है वो तो हमें मिल ही जाए। हजार प्रयास करने पर भी
अगर हमारे भाग में नहीं है वो हमें कभी नहीं। भोले बाबा इस प्रकार अपने आप चिंतन करके भगवान के ध्यान में फिर ध्यानस्थ हो गए। देखिए अब देवी सती ने अत्यंत विह्वल सती अब रो रही है। क्या किया जाए? एक बार तो घर से बाहर जाती है और एक बार बाहर से फिर घर आती है। अब मन में निश्चय कर नहीं पा रहा है हम किधर जाएंगे, पति के पास रहे या पिता के घर जाए। एक बार बाहर एक बार भीतर इस प्रकार करने लगी। विशेष करके भोले बाबा ने जो निषेध किया है, वारण किया है, सती तुम्हारा जाना उचित नहीं है। जिन आत्मीय स्वजनों ने देख करके हमें मुख घुमा लेंगे, इस प्रकार अपमान करेंगे, वह कोई भी हो, कैसा भी स्थान है, उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। पर इससे देवी को बड़ा कष्ट हुआ है। मन में कष्ट हुआ तो कष्ट हुआ ही है, इस प्रकार कष्ट हुआ। देखिए कष्ट होने के बाद इधर भय भी है और क्रोध भी है। भय क्रोध दोनों होने पर उस समय देवी लंबे लंबे श्वास जो है ना, लंबे लंबे श्वास लेने लगे। हम अब क्या करें? तब देवी की जो अवस्था जो है ना, वो अवस्था विचित्र हो गई। ऐसा जान पड़ रहा है क्रोध के कारण अपना शरीर वही भस्म कर डाला। शंकर तो जानते ही है क्या होने वाला है यार। फिर देवी ने इस प्रकार करते करते निश्चय कर लिया है मुझे जाना ही। मन नहीं मन रहा है। बाप के घर जाएंगे तो किस प्रकार आनंद करेंगे, आत्मीयों सजनों के साथ हम मिलेंगे, माँ के साथ वार्ता करेंगे, बहनों के साथ हम मिलेंगे। बस शंकर जी को छोड़ करके अकेले ही पर चल गई। और जैसे ही चल पड़ी, भोले बाबा ने इशारा किए है अपने गणों को, जाओ माता को इस प्रकार अकेले जाना उचित नहीं है, आप लोग भी साथ में चलो। भोले बाबा के कथन से हजारों हजारों शंकर का जो भृत्य जो है, उनका अनुचर जो है ना, अब जाना प्रारंभ किया और जाकर के माता देवी को रोके, माता आपको इस प्रकार जाना नहीं चाहिए, थोड़ा तो साजबाज करके जाइए। अपने बाप के घर आप जा रहे, सारे लोग किस प्रकार आ रहे, तो आप इस प्रकार जाना ठीक नहीं है। तो सारे रुद्रों के गण जो है देवी को खूब करके सजाई और जाने के लिए वाहन जो है, वृष जो है, वृषभ के ऊपर देवी को चढ़ाया। फिर खूब करके गाने के साथ, बजाने के साथ, कोई नाच रहा है, कोई आनंद के साथ, प्रसन्नों के साथ अब देवी चल पड़ी। आगे पीछे हजारों हजारों रुद्रों के गण है और जाते जाते जो दक्षों का यज्ञशाला जो है, उन यज्ञशाला में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उन यज्ञों की शोभा देखी कि अपूर्व शोभा है। आब्रह्म घोष जित यज्ञ वैशम विप्रण से जुष्टम विबुधैष्य सर्वस। चारों ओर केवल आब्रह्म घोष, घोष होता है शब्द, आ ब्रह्म वेदोध्वनि इस प्रकार हो रहा है। चारों ओर वेदोध्वनि से आकाश गूंज रहा है। चारों ओर जो ये मिट्टी के कलश जो है, सोने का, चांदी का, कुश का आसन जो है,
इस प्रकार स्वभाव से उन यज्ञों का मंडप जो है किस प्रकार स्वभाव हो रहा, केवल इस प्रकार नहीं है, उस यज्ञ मंडप में इस प्रकार भीड़ हुए, पैर रखने का कोई स्थान ही नहीं है। देवता लोग से आए हैं, मर्त लोग से आए हैं, ऋषि लोग आए हैं, तो किस प्रकार भीड़ है देखिए। उन भीड़ के बीच में हजारों हजारों मुनि ऋषि, संतोजन, महात्मा जन, देवलोक, मातृलोक, पितृलोक सब आए हुए हैं उन यज्ञों। और विद्वान लोग स्थानों स्थानों पर शास्त्रों की चर्चा करने लगे, एक दूसरे के साथ ये शास्त्रों चर्चा जो है हो रहे हैं। इस प्रकार शोभा देखते हुए सती ने जैसे ही उस मंडप में प्रवेश किया, देखो क्या विचित्र लीला है भगवान। उन मंडप में जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार जो है ना, दक्षों की भय से कोई भी सती के साथ वार्तालाप नहीं की। एक भी जो लोग जो है देवी के साथ वार्तालाप करेंगे, ऐसे वार्तालाप करने वाला कोई है नहीं। सब केवल दक्षो प्रजापति के भय से भयभीत होकर के, दक्षो प्रजापति भी देखा, आंखों से आंखों दर्शन हुआ, दक्षो प्रजापति ने सती के साथ आज वार्ता की। यद्यपि ये कनिष्ठा, ये छोटी पुत्री है, विशेष करके पिताओं के लिए तो पुत्री तो अत्यंत जो प्रेम प्रीति, ये पुत्री के ऊपर ये होती है। आज दक्ष ने क्या किया है, आज दक्ष ने कोई वार्तालाप किए नहीं। तत्तामागतम तत्रो कश्यन्नाद्रियत विमानितम यज्ञ कृतो भयात् जनः। देखिए, यज्ञ कृतो विमानितम, यज्ञ कृतो, यज्ञ जो करता जो है ना, कौन है, ये दक्षो प्रजापति। विमानितम, दक्षो प्रजापति के द्वारा अपमानित सबसे पहले। और भयात् जनः, उनके भय से कोई भी न आद्रिय, कोई भी आकर के उनके साथ वार्तालाप किए नहीं है। देवी को कोई आकर के आदर किए नहीं, केवल 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 श्रिते सश्रीर्वै यननींच स्वादरा प्रेमाश्रुकंठ्या परिश्वास्युर्मुदा। केवल जननी तो जननी ही होती, माता तो माता ही है। माता का दिल इस प्रकार नहीं है, पिता का दिल जिस प्रकार, विशेष करके जननी नहीं रह पाई। मां आकर के सती से मिले, अपने गले से गले लगाई, और बहन, शस्त्री होता है बहन, मां के साथ बहन भी आई, और बहन भी सती के साथ वार्तालाप जो है, जो मिलना है, ये सब कुछ किया। फिर मां ने अपने पुत्री को बैठने के लिए आसन और जो नानान प्रकार उपहार जो है, उपहार अनेक प्रकार दिए, पर माता सती आज कुछ ग्रहण किए ही नहीं। क्यों? कारण एक ही है, पिता जो है, पिता ने अनादर किया, पिता ने आदर नहीं किया है। पिता के अनादर से देवी अत्यंत दुखी है। इसलिए ना तो आसन में बैठे और ना तो उस उपहार द्रव्य जो है ये ग्रहण किए, कोई भी नहीं लिए। जो भी गण जो है, ना तो कोई
मां नहीं बैठ रही है तो भृत्य लोग जो है किस प्रकार बैठेंगे। इस प्रकार जब हुआ तब सती धीरे 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 यज्ञ सलाह जो है, हवन सलाह जो है दर्शन कर रहे अपने गणों के साथ। यज्ञशाला में सभी के लिए आसन है, सभी के लिए स्थान है, केवल एक देवता के लिए ही स्थान नहीं। जो देवता संसार में अति मान्य है, अति श्रेष्ठ है, उन देवताओं के लिए तो आगे होना चाहिए, पर उन देवताओं के लिए आज उसी यज्ञशाला में कोई स्थान नहीं। वो कौन है? अपने पति शंकर के लिए दक्ष प्रजापति ने कोई आसन नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया, केवल केवल ईर्ष्या के लिए, केवल विद्वेष के लिए, केवल शंकर को, शंकर के गणों को अपमान करने के लिए आज दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था की। ये देख करके देवी क्रोध से उनका शरीर जलने लगा और ये आंखें जो है ना लाल हो गई है। क्या करे? आप क्रोध को सहन नहीं हो रहा है। उस समय रुद्र का गण जो है ना उसी समय दक्ष प्रजापति को मारने के लिए तो तैयार हुआ, पर देवी ने सबसे अनुरोध करके सबको रोका, भाई देखो इस प्रकार झगड़ा, इस प्रकार अशांति नहीं करना है, धीरे से काम करो। देवी सबको रोक करके आज अपने क्रोध जो है, क्रोध सम्मरण नहीं कर पाए। देखिए क्रोध करना है, ऐसा नहीं है, वैष्णवों को भी क्रोध करना है। क्रोध कहां करना है? भक्तोद्वेषी जने, भक्तोद्वेषी जो है, भगवत विद्वेषी जो है, नास्तिक जो है, उन व्यक्ति के ऊपर क्रोध करना है। क्रोध करने पर कोई दोष नहीं है, शास्त्रों का ये आदेश है। देखिए सती के लिए अपने जन्मोदाता पिता है, पर पिता के साथ इस प्रकार व्यवहार कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैष्णव विदेशी लोग जो है ना, वो विदेशी लोग कोई भी हो, हमारे लिए अगर भगवान का विद्वेष कर रहे हैं, गुरु वैष्णव का निंदा कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ने के लिए, उन लोगों को त्याग करने के लिए संकोच कभी भी नहीं करना चाहिए। निसंकोच उनका संग छोड़ना चाहिए, उसी से हमारे आत्मा का कल्याण है। देखिए अब देवी अत्यंत क्रोध के साथ अपने पिता से क्या कह रहे, देखिए देवी कहती है, नयस्य लोके स्ततिसायन प्रिय अथा तथा प्रियो देहभृतं प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मोक्त वैरके रीते भवन्तं कथमा प्रतीपये। रीतम भवंतम कथमा प्रतीप। देखिए लोक होते इस संसार, देहो भृताम प्रियात्मनः, उन देहोधारी जो जीव जो है इस संसार में, शरीरधारी जीव जो है, देहोधारी जीव जो है, सभी देहोधारियों के लिए जो अत्यंत प्रिय है, आत्मा के समान जो शंकर जो है सबका प्रिय है। शंकर के साथ कौन विद्वेष करते हैं? ऐसे संसार में वही है जो आत्मघाती जो है, पापात्मा जो है, दुरात्मा जो है, दुराचारी जो है, वही शंकर के साथ विद्वेष करेंगे। यस्य अतिशायनः न अस्ति, जस्य जिनका अतिशायी न, जिनके समान, जिनके साथ
संसार में किसी को आप तुलना नहीं कर पाएंगे। ऊपर की तो बात और छोड़ ही दीजिए, जिनका ऐश्वर्य, जिनका वैभव, उनकी महिमा किसी के साथ तुलना नहीं है। सबसे श्रेष्ठ शंकर जी है। उनके लिए संसार में ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, और समस्त आत्मनि सबका ही कारण है। कौन? ये भोले बाबा। मुक्त वही रखे जिनके भीतर कोई जो हिंसा विद्वेष भाव, मुक्त जिनके भीतर कुछ है ही नहीं है। तस्मिन, उन शिव के साथ भवंतम रीते, आपके बिना कौन इस प्रकार अपमान कर सकते हैं, इस प्रकार निंदा कर सकते हैं। आप उसी शंकर के साथ आप विद्वेष करते हैं। आप पिता होने पर भी आज आपको धिक्कार है। आप जैसे पिता को हम धिक्कार देते। इस प्रकार क्रोध करते हुए देवी कहती है, आपको यह भी मालूम नहीं है, ये शिव नाम जो है, ये शिव 2 अक्षर वाला नाम है, और इन 2 अक्षरों का क्या महिमा है, उन महिमा को तो जानो। शिव यद द्वय अक्षरम नाम गिरेरितम निनाम सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलंग श्वासनम भवानहो दिष्टि शिवम शिवेतर। देखिए, यथ द्वय अक्षरम, ये 2 अक्षर का नाम जो है ना, नृणाम, अगर संसार में कोई मनुष्य प्रसंगों से, किसी संगों से, किसी भी बहाना से स्वकृत, अगर एक बार ही ये मंगलमय शिव का नाम गिरे रीतम, इरीतम, देखिए गिरा इरीतम, अपने वाणी के द्वारा कोई उच्चारण करे, ये शिव नाम कोई अगर किसी भी प्रसंगों में, किसी भी अवस्था में अगर कोई अगर इस शिव नाम कीर्तन करे, शिव का नाम शब्द अपने कानों से कोई श्रवण करे, उनके लिए क्या फल है? बोले उनके लिए फल यही है, अगर होता है पाप, उनके जीवन में जो पाप है आशु हंती, आशु होता है अतीव शीघ्रम, हंती होता है विनाश हो जाता है, उनके भीतर कोई पाप नहीं रहता है। इस प्रकार पवित्रकारी, इस प्रकार पवित्र शंकर है, जिस शंकर को देखकर महाकाल भी भयभीत होते हैं, और महाकाल भी जिनका आदेश को पालन करते हैं। और आप उस शिव के साथ आप इस प्रकार विद्वेष करते हैं, आप इस प्रकार हिंसा करते हैं, आप इस प्रकार द्रोह करते हैं, आपका मंगल कहां है? ये तो अति आश्चर्य है। देखिए, इस संसार में जो अमंगलमय स्वरूप है ना, जो अगुणी है, संसार में हर स्थान में अगुण हुई दर्शन करेंगे। संसार में जो अवैष्णव है वो हर स्थान को ही, हर व्यक्ति को ही अवैष्णव देखेंगे। जो असाधु है सर्व को ही असाधु देखेंगे, चोर सबको चोर ही देखेंगे, साधु सबको साधु ही दर्शन करेंगे। साधु किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं। युधिष्ठिर महाराज देखिए किस प्रकार महात्मा है, धृतराष्ट्रों ने किस प्रकार अत्याचार किए हैं कौरवों ने,
उनके पुत्रों ने, पर जीवन में कभी भी वो धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन कह करके संबोधन नहीं किया है, क्योंकि दुर्योधन शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। जो अत्यंत धनों में जो खराब है, अत्यंत जो गलत वस्तु है, वही दुर्योधन। पर जब भी दुर्योधन को बुलाते थे तब सुयोधन भाई कह करके, सुयोधन कह करके, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के नजर में ऐसा कोई पापात्मा, ऐसा दुराचारी, ऐसा कोई असद व्यक्ति था ही नहीं है, तो इन वो किस प्रकार लोगों के साथ विद्वेष करें। पर दुर्योधन के नजर में पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो साधु है। वो जैसे असद है, जिस प्रकार कपट है, उस प्रकार सारे लोगों को इस प्रकार देखते थे। आज दक्ष प्रजापति भी उसी हाल। उनके लिए संसार में कोई साधु नहीं है, उनके लिए संसार में कोई सज्जन नहीं है, सब असाधु है, सब असत लोग हैं। इसलिए आप अगुणी है, आप असाधु है, इसलिए सारे संसार को आप इस प्रकार देखते हैं। आपका बात क्या है, आपका नाम क्या है, देखो आपकी क्या महिमा है। अरे आपका जो पिता जो है, ब्रह्मा जी जो है, जिनका चरण कमल को स्मरण करके, जिनके चरण धूल प्राप्त करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, जिनके गुणगान करके अपने जीवन को सार्थक मानते हैं, और तुम उनके पुत्र होकर के उन शंकर के साथ तुम विद्वेष करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं करते, तुम्हें लज्जा नहीं आती। देवी के मन में आज खूब दुख हो रहा है, क्या करे। इस प्रकार अगर संग हो जाए, इस प्रकार अगर व्यक्ति मिल जाए, क्या किया जाए। देवी ने खोल करके कह दिया है, तुम जैसे कपटी हो ना, उन कपट के लिए महापुरुषों का निंदन करना ये कोई आश्चर्य बात है नहीं। बोले क्यों? देखिए, वही लोग महापुरुषों का, भगवानों का निंदन करते हैं। कौन लोग जो है, जो देहात्मवादी जो है, जो नास्तिक जो है, अपने देहों को ही जो आत्मा मानता है, अनित्य धन संपत्ति को ही जो नित्य मानता है, संसार में अनित्य धन संपत्ति को ही नित्य मान करके उन धन संपत्ति के ऊपर जिनकी आसक्ति है, वही लोग महान पुरुषों को, भगवानों को निंदा करने में पीछे नहीं हटते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए आप निंदा कर रहे हैं इन शंकर का, भोले बाबा का, ये कोई आश्चर्य का बात नहीं। ध्यान से सुनिए, संतो जन किसी के साथ क्रोध नहीं करते, किसी के साथ विद्वेष नहीं करते। ये अर्थात नहीं है उनके साथ हम विद्वेष करते जाएंगे, वो तो विद्वेष नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। संतों का जो चरण धूल जो है ना, गुरु महाराज हमेशा कहते थे, संतों के साथ विद्वेष मत करो, संतों के साथ हिंसा मत करो। अरे संत तो कुछ कहेंगे नहीं है, संत तो तुमसे कुछ बदला लेंगे नहीं है, पर संतों का चरण धूल जो है, चरण धूल तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम अपने आप देख पाएंगे तुम्हारा सर्वनाश किस प्रकार हो जाए। इसलिए संतों का चरण धूल जो है ना, तो धूल कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे अगर महात्माओं के चरणों में हम अपराध करें, संतों के चरणों में हम अपराध करें। संतों तो समुद्रिक है, किसी के साथ भेदभावना नहीं है, वो तो अत्यंत शांत है, वो तो आत्मा राम है। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, संतो उसमें कोई उनका कोई भ्रूक्षेप है नहीं। भागवत में इस प्रकार महिमा है, भिक्षुक ब्राह्मण, उन ब्राह्मण के ऊपर अत्याचारी लोग, पापात्मा लोग क्या नहीं किए हैं। उनके शरीर के ऊपर मलमूत्र त्याग, उनके भोजन के थाल में मलमूत्र त्याग, उनके सब कुछ हरण करके लिए, उनको सब कुछ किए है, फिर भी महात्मा कुछ कहे नहीं है। पर महात्मा तो कुछ कहता नहीं है, पर उनका चरण धूल जो है ना, किसी को क्षमा नहीं करते।
इसलिए मैं कहता हूं, देवी कहती है आपका जो सर्वनाश ये आपको ही देखना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार जो महान अपराध जो है ना, उस ऐसा अपराध है, पाप है, वो भोगने के लिए जन्मों का अपेक्षा, समय का अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार कोई महान अपराध जो है गुरु वैष्णव के चरणों में, भगवानों के चरणों में, वो जन्मों का अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो समय का अपेक्षा नहीं रखते, तत्क्षणात प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार अनेक है। किसी ऋषियों ने अभिशाप दे दिया, तुरंत उनका मानव शरीर परिवर्तन होकर सांप बन गए। किसी महात्मा ने अभिशाप दे दिया, तुरंत उनका सुंदर शरीर नष्ट होकर के कुरूप बन गए, प्रेतात्मा बन गए, पापात्मा बन गए, भूत प्रेत बन गए तुरंत, क्योंकि ये महान अपराध है। ये महान अपराध साथ साथ शुरू होता है। इसलिए देवी कहती है ये वैष्णव अपराध जो है संसार में अत्यंत अत्यंत भयानक है, और इसके लिए कोई काल की अपेक्षा नहीं रखती है, कोई जन्मांतर का अपेक्षा नहीं रखता है, तो तुरंत ही शुरू हो जाता है। तुम अपने आंखों से देखेंगे किस प्रकार तुम्हारा ध्वंस हो जाए। पर देवी मन में यही सोच रही, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सभा जो है, इस प्रकार स्थान जो है, देखिए भक्तों को अगर ऐसा स्थान मिल जाए, इस प्रकार अपने कोई रिश्तेदार, अपने पिता माता, अपने भाई पति अगर इस प्रकार मिल जाए, तो उन समय भक्तों को क्या करना चाहिए। उस समय भक्तों को बिना सोच के, बिना विचार के, देवी जो कहती है उस आदेश को पालन करना है। तब हमारी भक्ति, तब हमारी साधन, तब हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएंगे, नहीं तो हमारा आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, इस श्लोक में देवी क्या कहती है। देवी कहती है कर्णोपिधाय निरयार यदल कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणीभिरश्यमाने सिंध्याद्गृहस्य रुमतीमसताम् प्रभुष्य द्युहामसुनमपि ततो विसृजित स्वधर्मो। देखिए कर्णो पिधायो निरयात् यदकल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणीभिः रश्यमाने और सिंध्यात् प्रहस्यात् रूमत उशति अशताम प्रभुष्य द्युहा मसुनाम अपि ततो विसृजित स एव धर्म। यही हम लोगों के लिए धर्म है। क्या धर्म है? धर्म बीतरी। देखिए धर्म बीतरी अर्थात जो धर्मों का रक्षक है। इस संसार में भगवान का कथा, भगवान का नाम जो खूब करके प्रचार कर रहे, खूब करके प्रसारण कर रहे हैं, अश्री निभि अर्थात वो उस प्रकार महात्मा जो है जिन महात्माओं के पास कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्भी होता है। अगर मनुष्य, कोई भी जन अगर उनका कोई निंदा करे, उनके साथ कोई विद्वेष करे, यत अकल्प, अगर आपके भीतर क्षमता नहीं है, आपके पास उनके साथ लड़ने का शक्ति नहीं है, तो आपको उस समय क्या करना है। देखिए आपको उस समय कर्णो पिधायम तदा निरयत, अपने कानों में 2 अंगुली डालो, कान बंद करके तुरंत वो सभा हो, वो स्थान हो, वो घर हो, छोड़ करके चले जाओ, तभी आपका आत्मा का कल्याण हो। कान बंद करके, फिर भी कभी जीवन में गुरु वैष्णव की निंदा, भगवान की निंदा नहीं सुनना है। मान लीजिए आप में क्षमता है, आप में शक्ति है उनके साथ लड़ने के लिए, अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास क्षमता है, तो क्या करना है, जोर पूर्वक, जबरदस्त पूर्वक उनका
असती उनका जीवा जो है ना, उन जीवाओं को आप छेदन कर दीजिए। छेदन मतलब काट देना है ऐसा नहीं है। तत्व सिद्धांतों के द्वारा, जुक्ति के द्वारा उन व्यक्ति को खंडन कर दीजिए, उन व्यक्ति की भावना को खंडन कर दीजिए। अगर आपके पास ये सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उनके साथ लड़ो। अगर लड़ने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास वो विद्या नहीं है, तुरंत वो स्थान को छोड़ो। कानों में हाथ डालकर, एक शब्द भी कान में नहीं आ जाए। अगर आ जाएंगे, भक्ति जो है, संस्कार जो है, सुकृति जो है ना, ये सारे सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। भक्त ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जय निंदे हिंसा करी। अगर वैष्णव है तो उनका चरित्र सदा पवित्र है, उनके चरित्र में कोई दोष नहीं रहे। अगर वैष्णव है, अगर नामधारी वैष्णव है, भेषधारी वैष्णव है, वो अलग बात है। जो वैष्णवों का लक्षण है, शास्त्र में जो कहा है, अगर ये वैष्णव है तो उनके जीवन में कोई दोष नहीं है, उनके जीवन में कोई दाग नहीं। पर ऐसे महात्माओं के ऊपर जय निंदे हिंसा करी, अगर हिंसा पूर्वक, विद्वेष पूर्वक, मात्सर्य पूर्वक उनके साथ कोई हिंसा करे, भक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जय निंदे हिंसा करी, भक्ति विनोद नासम्म सहकारे, सदा थाके मौन धरी। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करता है। भक्ति विनोद ठाकुर हमें यही शिक्षा देता है, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति के साथ ना संग करना है, ना उनके साथ बैठना है, ना उनके साथ रहना है। कोई भी हो संसार में, गुरु हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, उनको उत्क्षणात त्याग करना है। प्रहलाद महाराज ने पिता को त्याग किया, बलि महाराज ने शुक्राचार्य गुरु को त्याग किया है, ब्रज की गोपियों ने पति को त्याग किया है, अपने अपने पतियों को, विभीषण ने भाई को त्याग किया, केवल केवल भगवत विद्वेष के लिए, केवल केवल भगवत के साथ ईर्ष्या के। इसमें कोई दोष नहीं है। और देवी कहती है, अगर इन दोनों में करने में हमारा असमर्थ है, ऐसे स्थान में आ गए, ना तो हम स्थान छोड़ पा रहे हैं, ना तो उनके साथ हम लड़ पा रहा है, तो अंतों में क्या करना चाहिए। देवी कहती है, अगर इस प्रकार आपका भी हाल है, आपका प्राण जो है, आपका जो शरीर जो है, तत्क्षणात क्या करना चाहिए, अशुन अपि तत्याजे, अशुन अर्थात प्राण को आप त्याग करिए, वही प्रायश्चित है। वैष्णव निंदा श्रवण करना यही प्रायश्चित है। स्थान छोड़ो, उनके साथ लड़ो, नहीं तो अपने प्राण को त्याग दीजिए। ये वैष्णव निंदा श्रवण करने का, भगवत निंदा श्रवण करने का ये प्रायश्चित है। देखिए, जो भगवान का, गुरु वैष्णव का निंदा करते हैं ना, जिस मुख से निंदा करते हैं, उसी मुख में एक दिन न एक दिन कुष्ठ रोग जो है ना, कुष्ठ रोग होगा ही होगा, और उसके मुख में कीड़ा बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्र में इस प्रकार व्याख्या है, पुराणों में। जिन जिन व्यक्तियों का ये कुष्ठ रोग जो है ना, महान महान रोग जो है, ये महान महान दोषी है, महान महान अपराधी है, इस प्रकार भयानक अपराध करके आए हैं, इस जीवन में उस अपराध को भोग रहे। भोग जो है ना, अपराध जो है, भोगों के द्वारा ही क्षय होता है। अगर वो वैष्णव, वो महात्मा जन हमें कृपा ना करे, जय मुँह के फुटे काटा, सही मुँह के बाहर आए, पायस फुटले की स्कंद बहरे। अगर जिन महात्माओं के चरणों में हमने अपराध किए हैं, अगर हम जाकर के क्षमा मांगे, अगर वो महात्मा अगर हृदय से, मन से हमें क्षमा करे, तो दोस्तों अपराध जो कुछ हल्का हो ही जाएंगे। अगर अपराध क्षमा ना करे
तो भोग से ही अपराध को खलन करना पड़ेगा। तो भोग क्या है? महान महान रोग जो है, महान महान दुर्व्याधि जो है, उसी के द्वारा हमको वैष्णव अपराध भोगना पड़ेगा। इस प्रकार देवी हमें शिक्षा देती है। इस प्रकार लोगों के साथ कोई भी हो, ना बैठना है, ना वार्तालाप करना है, ना संग करना है। उस प्रकार व्यक्तियों के साथ हमेशा दूर रहना है। अपने पिता से कहते, देखो आप कहते हैं ना मैं उनका ससुर हूं, मैं उनका ससुर जी हूं और वो मेरे दामाद है, और उन्होंने मुझे प्रणाम किया नहीं है। यही तो दोष है ना, और तो दोष कुछ है नहीं है। तो तुम जैसे मूर्खात्मा हो, तुम जैसे मूर्ख हो, संसार में ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि सबका भाव अलग अलग है, सबका भाव एक नहीं है। सभी लोग आपको आकर के चरण पकड़ के आपको प्रणाम करेंगे, चरण को धो देंगे, आपके सामने आकर आरती करेंगे, वही आपका पूजा है। ये महात्माओं का व्यवहार नहीं है, ये तो मूर्खों जनों का व्यवहार है। देखिए संसार में कोई निवृत्त मार्ग में है, कोई प्रवृत्त मार्ग में है, कोई सकामी है, कोई निष्कामी है। तो जो निष्कामी है तो उनका भाव आप किस प्रकार समझेंगे? जो निवृत्ति परायण लोग हैं, उन महात्माओं का व्यवहार आप प्रवृत्ति मार्ग में है, तो आप प्रवृत्ति मार्ग में होकर के निवृत्ति मार्गों का जो व्यवहार आप किस प्रकार समझेंगे? इसलिए आपके लिए ये महान दोष है, आपको ये महान अपराध हुई है और ये आपको ही भोगना पड़ेगा। देवी इस प्रकार अत्यंत कष्टों के साथ आप कहती है, ये शरीर जो है ना, आपसे तो मैंने प्राप्त किए ना, इस शरीर को मैं धारण नहीं करूं। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकंठ गर्हि। कारण एक ही है, आपने क्या किया? शितिकंठ जो है, नीलकंठ जो है, शितिकंठ जो है, गर्हीन, उनके साथ आप देश किए हैं, उनके साथ आप विद्वेष किए हैं, हिंसा किया है। इसलिए तब आपका दिया हुआ शरीर, वास्तव में ये शरीर जो है किनके दान है? संसार में माता पिताओं का शरीर दान, ये तो मानना पड़ेगा। माता पिता ने हमें कृपा करके ये शरीर हमें दान दिए है, और ये शरीर उनके कृपा से हम प्राप्त किए हैं, ये तो ठीक है। पर आपसे हमने प्राप्त किए है, इसीलिए हम इस शरीर को धारण नहीं करेंगे। क्यों? आप पापात्मा है। इसलिए कहे है देवी, तबो उत्पन्नम इदम कलेवरम अहम ना धरेष्यामि, मैं धारण नहीं करूंगी। इस शरीर को मैं क्या करूंगी? इस शरीर को त्याग करूंगी, त्याग करके मैं पवित्र बन जाऊं। उदाहरण जैसे कहती है, देखिए अगर भूल से, गलती से आपने जहर मिला हुआ अन्न जो है ना, आप भोजन आपने खा लिए, उसमें जहर था। उन जहरों को दूर करने के लिए आप तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, उस समय आपको उल्टी करना पड़ेगा। भ्रमण के द्वारा, उल्टी के द्वारा उन जहरों को उस निकालना पड़ेगा, तभी आपको शांति मिलेगी। अगर भूल क्रम से, अगर घटना क्रम से इस प्रकार संग हमें मिल जाए तो हम तो शरीर त्याग नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? उसी समय उन संगों को त्याग करके हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहां जाने पर आत्म कल्याण की, मुक्ति की मार्ग खोला है। मुक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, इस प्रकार स्थानों में जाना चाहिए। इसलिए मैं तो आपका ये शरीर धारण नहीं करूंगी। देखो मुझे सबसे अधिक दुख उसी समय होगी। बोले किस समय?
जिस समय शंकर मुझे संबोधन करेगी, किस प्रकार संबोधन करेगी देखिए। जिस समय शंकर मुझे आपके गोत्रों लेकर दक्षस्य अपत्य इति दाक्षयिन, तो जिस समय मुझे संबोधन करेगी कि कैसे, गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्ष्वायिनित्याह यदा सुदूरमना। देख, कहती है गोत्रम त्वदीयम, त्वदीयम गोत्रम, आपके जो गोत्र है ना, भगवान वृषध्वज भगवान शंकर जब कहेगी, बुलवाएगी, ये दाक्षायिनी, दक्षों की पुत्री, तब उस समय आपके नाम सुनने पर मुझे इस प्रकार कष्ट होगी, इस प्रकार कष्ट होगी जिस कष्टों का कोई सीमा है ही। इसलिए मुझे इसी समय आपके द्वारा प्राप्त हुए ये शरीर जो है, इस शरीर को मैं त्यागता हूं। इस शरीर धारण करने का मुझे कोई हक नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यह स्थान छोड़ करके हम चले जाएंगे। पर आपका गोत्र लेकर जब भोले बाबा हमको बुलवाएंगे, तब किस प्रकार यही बात तो स्मरण होगी नहीं। इसलिए देवी इस प्रकार चिंता भावना कर, देवी आप निश्चय कर लिया, इस संसार में मुझे नहीं रहना। इस प्रकार चिंता भावना करके देवी उसी यज्ञशाला में किसी एक कोने में बैठ गई, और एक कोने में बैठने के बाद अपना पूरा शरीर जो है ना, वस्त्रों से ढक ली। वस्त्रों से ढकने के बाद एक मन से, एक प्राण से केवल पतिदेव का ही स्मरण कर रहा है, केवल पतिदेव का ही ध्यान कर रहा है। किस प्रकार, ततः शभर्तु शरणाम भुजा शवम जगत गुरु चिंतयन्ति ना चा परम। उस समय माता देवी केवल केवल स्वभर्तु, सा होता है अपने पति जो है, वो कौन है, जगत गुरु। जगत गुरु भोले बाबा जो है, शंकर जो है, केवल उनका ही चिंतयति, उनका ही चिंतन कर रहा है। उनका चरण कमल जो है, चरण कमलों का रस जो है, उनका चरण कमलों का आशब आशब होता है, मधु अमृत जो है, उनका चिंतन कर रहा है। नौ च अपरम, और किसी का भी चिंतन उस समय नहीं कर रहा है। आग बंद करके केवल केवल अपने पति का ही चिंतन, पति का ही स्मरण, पति का ही चरण का चिंतन करते करते ददर्श हे तो हतकल्मषः। देखिए, जब इस प्रकार देवी ने शंकर जी का स्मरण किए, चिंतन किए, देवी के शरीर में और कोई जो पाप जो है, जो वैष्णव निंदा श्रवण किए है, इस प्रकार उन्होंने अपराध सूचक वाक्य श्रवण किए हैं, जो भी दोष हुए हैं, देवी से शरीर से सारे दोष चले गए। हतो कल्मषः, सारे कल्मष दूर हो गए। और दूर होने के बाद क्या हुए, सद्य उसी समय प्रोज्जजाल समाधि जाग्निना, उसी समय शरीर में समाधि जन्य जो अग्नि जो है, अग्नि जल उठी, और अग्नि जलने के कारण उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति जो है, दिव्य ज्योति निकल कर बाहर आई, और सबके देखते देखते वो ज्योति जो है ना, वो उसी आकाश में लीन हो गई। कोई कोई कहते हैं सती देवी अपने समाधि अग्नि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया है, पर बात ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब शरीर उन्होंने त्याग किए, अब भोले बाबा अन्य पुराणों में है, इस पुराण में तो उतना नहीं है, भागवत में अन्य पुराणों में भोले बाबा देवी का जो शरीर जो है ना,
अपने कंधे में लेकर के पूरे पृथ्वी पूरे भ्रमण करेंगे, आवेश में आकर के, भाव में आकर के, और इस प्रकार नृत्य करेंगे, इस प्रकार नृत्य करेंगे, देवी के शरीर लेकर के पृथ्वी देवी भी टलमल हो जाएंगे जैसे प्रलय का काल समय। और शंकर भी देवी को नहीं छोड़ रहे, पूरे भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। तो उस समय भगवान ही अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी का शरीर जो है टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग स्थानों में उन्होंने गिराएंगे, और वही से 51 पीठ जो है देवी माँ की, वही 51 पीठ बने हुए हैं। देवी ने केवल अपने प्राण को त्याग दिए, और प्राण त्यागने से ही उनका शरीर वही गिर गए। और जैसे ही शरीर गिरे ना, उस सभा में जितने भी प्रजा लोग हैं, जितने भी देवता है, ऋषि लोग हैं, सारे लोग केवल हाहाकार, केवल हाहाकार। क्या करें? सभी लोग एक वाक्यों से कहने लगे, अरे ये दक्ष किस प्रकार कपट है, किस प्रकार पाषाण का हृदय है। अरे अपनी छोटी सी बेटी पुत्री पति के घर से आए, पर उनके से भी बात किए नहीं है, उनको इस प्रकार अपमानित किए गए हैं। अपमान के कारण आज अपना शरीर उन्होंने यही त्याग दिए है, उन्होंने आत्महत्या की है। और उस समय देखो किस प्रकार निर्दय व्यक्ति है, उस समय जाकर के देवी को, सती को रोका भी नहीं है मृत्यु से। ये अपजस जो है, ये कलंक जो है, इन दक्षों को पूरे जीवन जब तक आकाश में सूरज चंद्र रहेंगे तब तक उनको भोगना ही पड़ेगा। लोग कहेंगे देखो अपने बेटी को मार दिए। संसार में अगर कोई अपने बेटी को मार दे, उनके समान पापात्मा, उनके समान दुराचारी कौन हो सकते हैं? उनके समान कलंक अपजस किसी को नहीं हो। इसलिए चारों ओर लोग जो है इस प्रकार हाहाकार करने लगे। और ये देख करके रुद्रों के गण जो है ना, सहन नहीं कर पा रहे। तुरंत उन्होंने क्या किया, सब रुद्रगण ने उन दक्षों को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए हैं, जैसे ही प्रस्तुत हुए हैं, उस समय भृगु ने कुछ उल्टे सीधे काम किए। भृगु मुनि ने क्या किया है, अपने मंत्रों के द्वारा यज्ञ कुंड से उस देवताओं को सृष्टि कराए, और स्वाहा स्वाहा करते करते सृष्टि करा करके उन रुद्रों के गणों के खूब करके मारते मारते वहां से भगा। देवी शरीर वहां पतन हो गई, और रुद्र का गण भी सब भागते भागते अब कैलाश आएंगे। और कैलाश आने के बाद देवर्षि नारद जिस प्रकार शंकर जी को संवाद देंगे, संवाद देने के बाद अब भोले बाबा इसका उपाय क्या करेंगे, अगले दिन हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा यही है। अगर कथा में कोई भूल त्रुटि हुए आप सभी भक्त महात्मा जन क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। महाराज आप जय ध्वनि दीजिए। जय विराज महाराज की जय। महाराज बामन गोस्वामी जय। गोस्वामी महाराज की जय। सरस्वती प्रभुपाद की जय। बोल केशव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परम सच्चिदानंद जगन्नाथ
रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय, सिंगा भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ कृष्ण सत्यवता गौर हरि की जय, वृंदावन धाम मथुरा धाम, श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन कालिंदी जमुना महावन दादा वन की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अनंत पुरी वस्तु हरिनाम संकीर्तन काली वस्तु गंगा जमुना देवी तुलसी महारानी पूर्णमासी जुगुल वर्षनारायण गोकुल महामंडल चिंतारण महादेव उपचार भूतेचर हमेशा रसेचर ननुचर चक्रचर कुंडिचर हमेशा काशी अनाथी भक्ति वेदांत तीन विक्रम हरि भक्ति वेदांत नानक सभी महाराज की जाए अन्य सन्नति ब्रह्मचारी बिंद जाए अन्य असत जगान की जाए राय हरिदास प्रभु की जाए अनंत बड़ी वैष्णव बहुत प्रमानंद जय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण बाबू जी। कोई बोले ना हरे कृष्ण। ठीक है, सभी भक्तों के शरण में प्रणाम दंडवत। जी कहाँ गए? ठीक है, हरे कृष्ण। दंडवत आप सभी के दंडवत। ठीक है, हरे